Hello viewers, welcome to our YouTube channel. Hello viewers, welcome to our YouTube channel CC Raj GC Kota class. My name is Dr. Rajendra Singh Rajat, Assistant Professor in Department of Zoology, Government College Kota, College Education, Rajasthan. In this video, we are going to discuss about the classification of birds which are included in class Aves. सबसे पहले हम बर्ड क्लासिफिकेशन के इंट्रोडक्शन के बारे में कुछ बात करते हैं। बर्ड्स के अंतर्गत 9000 जीवित जातियों को सम्मिलित किया जाता है, जिसमें अकॉर्डिंग टू व्हाइटमोर 34 ऑर्डर्स को सम्मिलित किया गया है, जिसमें से 27 ऑर्डर्स लिविंग बर्ड्स को इंक्लूड करते हैं, जिनमें से 2 रिसेंटली एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, जबकि 7 ऑर्डर फॉसिल बर्ड्स को सम्मिलित करते हैं। The name of the order ends in formis, which means forms. So it should be noted that the formis includes different types of forms in birds. और क्लास एविस को यहाँ पर 2 सब क्लासेस में डिवाइडेड किया गया है। फर्स्ट सब क्लास इज आर्कियोर्निथिस एंड द सेकंड सब क्लास इज नियोर्निथिस. Then this slide discusses about the characters of the 2 subclasses, that is Archaeornithis and Neornithis. The first column belongs to the Archaeornithis and the second column belongs to the Neornithis. First subclass Archaeornithis में extinct Jurassic birds को सम्मिलित किया गया है, जिनके wings primitive type के थे with little power of flight, और इनकी जो tail थी वो long और lizard like थी. Teeth were present and the vertebrae was heterocylous, and the tail with 3 caudal vertebrae, and the sternum without a keel was present in Archaeornithis birds. And the most famous example of this group is Archaeopteryx, which are included in the order Archaeopterygiformis. Then the second subclass, that is Neornithis. इसमें मॉडर्न बर्ड्स को सम्मिलित किया गया है और साथ ही एक्सटिंक्ट पोस्ट जुरासिक बर्ड्स को भी सम्मिलित किया गया है, जिनमें विंग्स यूजुअली वेल डेवलप्ड होते हैं और दैट इज अडेप्टेड फॉर फ्लाइट. इनमें टेल शॉर्ट होती है, जिनमें रेक्ट्रिसेस एक फैन लाइक मैनर में अरेंज होते हैं. इन पक्षियों में टीथ जनरली एब्सेंट होते हैं, क्योंकि इनमें बीक प्रेजेंट होती है, बट द टीथ इज यूजुअली एब्सेंट, एंड द वर्टिब्री इज एम्फिसिलस, एंड द फ्यू caudal vertebrae becomes fused and forms a special structure, that is spygostyle, and the sternum usually with a keel that provides an attachment site for the large pectoralis major muscles, which helps in flight. And the Neornithis subclass is subdivided into 4 superorders. Then the first superorder of the subclass Neornithis is Odontognathi. इसके अंतर्गत विलुप्त अपर क्रिटेशियस बर्ड्स को सम्मिलित किया जाता है, जिनमें दांत जबड़े के अंदर उपस्थित थे और उनका ब्रेन एवियन टाइप का था, यानी कि पक्षियों के जैसा ही था. इसमें 2 ऑर्डर्स को सम्मिलित किया जाता है. द फर्स्ट ऑर्डर इज एस्पेरोर्निथिफॉर्मिस, जिसके अंतर्गत लार्ज फ्लैटलेस मराइन बर्ड्स को सम्मिलित किया गया है, जिनमें कि स्टर्नम विदाउट अ कील was present, and the example is Hesperornis. And the second order is Ichthyornithiformis, which includes as Ichthyornis, जिसमें sternum usually with a keel is present. So these are also extinct birds
that were present in Upper Cretaceous period. So this is the first superorder, Odontognatha of subclass Neornithis. Then the most important superorder and the second superorder of the subclass subclass Neornithis is Paleognathi और Ratiti. इसके अंतर्गत मॉडर्न बिग साइज्ड फ्लैटलेस रनिंग बर्ड्स को सम्मिलित किया गया है जिनमें दांत या टीथ अनुपस्थित होते हैं. The first order is Struthiouniformis, which includes Stritch, that is Struthiocamelis, present in Africa and with legs strongly developed. The second order is Rheoformis, that is Rhea americana is an example of this order, and it is an American ostrich. The third order is Casuariiformis, जिसके अंतर्गत कैसवरी और एमूस को सम्मिलित किया गया है जो कि क्रमशः ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में पाए जाते हैं. इसी प्रकार चौथे ऑर्डर एप्टेरिजिफॉर्मिस में कीवी को सम्मिलित किया गया है जो कि न्यूजीलैंड में पाया जाता है. और इसी तरह नेक्स्ट जो ऑर्डर्स हैं वो हैं डायनोर्निथिफॉर्मिस, एपियोर्निथिफॉर्मिस एंड टेनेमिफॉर्मिस. So this is the second super order Paleognathi or Ratiti, that is modern big sized flightless birds, running birds without teeth. Then the third super order is Spheniciformis. इसके अंतर्गत मॉडर्न एक्वेटिक फ्लाइटलेस बर्ड्स को सम्मिलित किया गया है with paddle-like wings or flippers and the feet are webbed. यानी कि ये जलीय पक्षी हैं जो कि इनके जो विंग्स हैं वो फ्लिपर्स में रूपांतरित हो जाते हैं और फीट्स होते हैं वो वेब्ड होते हैं. feathers स्मॉल होते हैं जो कि स्केल लाइक होते हैं which covers the entire body and there is a thick layer of fat beneath the skin. Nests are found in rocky islands or ice, and the famous example of this superorder in penny is penguins. Then the last fourth superorder of Neornithis is Neognathi or Carinati. इसके अंतर्गत most modern and usually small sized फ्लाइंग बर्ड्स को सम्मिलित किया गया है. यानी कि अधिकांश जो आधुनिक छोटे आकार के उड़ने वाले पक्षी हैं वो सुपर ऑर्डर नियोग्नेथी और कैरेनिटी के अंतर्गत सम्मिलित किए जाते हैं. हमारे चारों ओर जितने भी पक्षी सामान्यतः पाए जाते हैं वो मुख्यतः इसी सुपर ऑर्डर नियोग्नेथी में सम्मिलित किए जाते हैं. सुपर ऑर्डर नियोग्नेथी के अंतर्गत कई सारे ऑर्डर्स सम्मिलित हैं और पढ़ने के सरलता की दृष्टि से इन ऑर्डर्स को कुछ ग्रुप्स में बांटा गया है जिनमें सबसे पहला ग्रुप है आर्बोरियल ग्रुप. यानी कि इसमें ऐसे पक्षी सम्मिलित हैं जिन्हें वृक्षवासी कहते हैं जो अपने ज़िंदगी का अधिकतर समय झाड़ियों और पेड़ों के आसपास व्यतीत करते हैं, जैसे कि कोलम्बा लीविया जिसे कि कोलम्बिफॉर्मिस ऑर्डर के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है जिसे हम सामान्यतः पिजन या कबूतर कहते हैं. दूसरा एग्जाम्पल जो कि आर्बोरियल ग्रुप का है वो है पैरट और पैराकिट जिसे सिटेकुला कहते हैं जो कि सिटेसिफॉर्मिस ऑर्डर के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है. हम सभी इन दोनों ही पक्षियों यानी कि कबूतर और तोते से भली भांति परिचित है. एंड द सेकंड ग्रुप ऑफ द नियोग्नेथी ऑफ टेरेस्ट्रियल बर्ड्स जिन्हें हम स्थलीय पक्षी कहेंगे. यानी कि अधिकतर समय ज़मीन पर व्यतीत करते हैं, जैसे कि गैलीफॉर्मिस ऑर्डर के अंतर्गत पाए जाने वाले पी फाउल जिसे हम सामान्यतः मोर कहते हैं जिसका वैज्ञानिक नाम पैवोक्रिस्टेटस है. और दूसरा जो इसमें कॉमन एग्जांपल है दैट इज़ जंगल फाउल, दैट इज़ साइंटिफिक नेम इज गैलस. इसी प्रकार दूसरा इसमें जो ऑर्डर सम्मिलित हुए हैं कुकुलीफॉर्मिस विच इंक्लूड कुकू
that is Cuculus and the quail that is Eudainemis। यानी कि स्थलीय पक्षियों में मोर जो कि हमारा राष्ट्रीय पक्षी है, नेशनल बर्ड है, पी फॉल, वो भी सम्मिलित है। इसी प्रकार जो तीसरा समूह स्विमिंग बर्ड्स का आता है, यानी कि जो पक्षी तैरते हैं, जिनमें हम जानते हैं वाइल्ड डक मोस्ट कॉमन है, जिसे एनास साइंटिफिक नेम है, और इसका जो ऑर्डर है वो एंसेरिफॉर्मिस। The fourth group of the Neognathes of shore birds, then the order is Siconiformis, which include cattle-egrets, Bubalcus। कैटल सामान्यतः कैटल यानी कि मवेशियों के आसपास पाए जाते हैं, और उनके जो मूवमेंट होता है उससे जो कीट या इंसेक्ट्स उड़ते हैं उनको ये अपने भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। दूसरा जो यहाँ पर इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है शोर बर्ड्स का, वह स्टार्क, जो कि सिकोनिया साइंटिफिक जीनस के अंतर्गत सम्मिलित किए जाते हैं। एंड द थर्ड एग्जाम्पल इज फ्लेमिंगो, दैट इज Phoenicopterus। The second order in this group of shore birds is Gruiformis, which includes Sarus crane, that is Anticon, and the bustard, that is Coleotis, and it is commonly known as Godawan और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, जिसे कि हम राजस्थान का राज्य पक्षी भी कहते हैं। The next group of the Neognathes of aerial birds, these birds are mostly on wings, यानी कि ये पक्षी अधिकांश समय उड़ते ही रहते हैं, और इसका जो सबसे कॉमन एग्जाम्पल है वो है इंडियन स्विफ्ट, दैट इज माइक्रोपॉडस। तो माइक्रोपोडिफॉर्मिस के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। इस प्रकार ये जो सुपर ऑर्डर नियोगनेथी है, ये सबसे बड़ा सुपर ऑर्डर है, जिसके अंतर्गत कई सारे ऑर्डर सम्मिलित हैं, और अधिकतर आधुनिक पक्षी जो कि आकार में छोटे और उड़ने में सक्षम है, उनको सम्मिलित किया गया है। कई सारे ऑर्डर्स होने के कारण इस जो सुपर ऑर्डर नियोगनेथी है, इसको कई सारे समूहों में बांटा गया है, जैसे कि आर्बोरियल ग्रुप जो कि वृक्षवासी कहलाते हैं, दूसरा टेरेस्ट्रियल बर्ड्स जो कि स्थलवासी कहलाते हैं, तीसरा स्विमिंग बर्ड्स जो कि जल में पाए जाते हैं, देन शोर बर्ड्स जो कि पानी के आसपास पाए जाते हैं, और एरियल बर्ड्स जो कि अपना अधिकतर समय हवा में उड़ने में व्यतीत करते हैं। So in the end, we should summarize this video that the classification of the class Aves, which include birds, are mainly based on the fact that the birds are flightless or flying birds, and the another categorization is of that the birds are extinct or living. So first, we have subdivided the birds into two subclasses, that is Archaeornithes and Neornithes. Archaeornithes includes the extinct birds, whereas Neornithes subclass include living birds as well as some extinct birds also. And then the Neornithes is again subdivided into four superorders, among which the two superorders, that is Paleognathes, that is also called Ratiti, and the other superorder is Neognathi, that is known as Carinity. So the Paleognathi includes the flightless running birds, that are big sized birds, whereas the second important group, that is Neognathi or Carinity, which includes flying birds which are small in size and include most of the modern birds. So that's all about the classification of birds which are included in class as. So thanks for listening this video. Hope you have enjoyed the video. Thank you very much.